अगेन। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 12 और एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स। फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे। सो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इट सेज दैट अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, यानी एक सर्कल है जिसका रेडियस 15 सेंटीमीटर है। सो लेट्स मेक अ सर्कल, इसका रेडियस 15 सेंटीमीटर है एंड a chord subtends an angle of 60 degree at the center. एक chord है which subtends a 60 degree angle at the center. This angle is 60 degree. This is your center and the radius is 15 centimeter. Find the area of the corresponding minor and major segment. This is your minor, यानी छोटे वाला segment. माइनर सेगमेंट मतलब छोटा सेगमेंट, मेजर सेगमेंट जो बड़ा सेगमेंट है। भाई याद रखो, आराम से समझ में आने वाली बात है। 180 डिग्री के ऊपर और नीचे दोनों इक्वल पार्ट हो जाते हैं। अगर एंगल 180 डिग्री से ज्यादा है तो इसका मतलब वो मेजर सेगमेंट है, और अगर 180 से नीचे है तो वो माइनर सेगमेंट है। और कमाल की बात, इस बार यानी 2020-21 के एग्जाम्स के अंदर आपके पास एंगल्स 90 डिग्री से बड़ा आएगा ही नहीं। सो बी रिलैक्स, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, बड़ा एंगल आएगा ही नहीं। सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस सॉल्यूशन। योर रेडियस इज 15 सेंटीमीटर एंड थीटा यानी एंगल इज 60 डिग्री। एरिया ऑफ, first we'll find out minor segment. Formula for minor segment and major segment both are same. The formula is pi r square theta upon 360 means area of sector minus area of this triangle, and area of this triangle is 1 by 2 r square sine theta. Now they have already mentioned that we have to use pi as 3.14 and under root 3 as 1.73. So 314 by 100 into 15 into 15 into 60 by 360 minus 1 by 2 into 15 into 15, and sine theta, theta is 60 degree. We know the value of sine 60, that is under root 3 by 2. Very good. And they have also mentioned we have to use the value of root 3 as 1.73. So now let's solve it. 0 cancelled. 6 6 are, 3 2s are, 3 5s are, 5 2s are, 5 3s are, 5 4s are. That is 942 by 8 minus 225 into 173 by 400. We'll cancel it out. 5 80 16. So that has come as 942 by 8 minus 9 3s are 27, 15 divided by 16. Your LCM is 16. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 9 2s are 18, minus 1 5 5 7. So that has come as 7 3 3 by 16. 337 by 16. 16 2s are 32. Sorry, it is 2. 327. 16 2s are, that's 0.7. 327 divided by 16. 32 7 0 decimal 70. 16 4s are 64, that is 60. 48 12 120. 16 7 7s are 112 8
16 fives are. So that has come as 20.4375 centimeter square. And this is the area of your minor segment. So what is the area of your major segment? Now we'll find out the area of the major segment also. That will be area of the circle minus area of the minor segment. So that's easy part. Area of circle, area of major segment. Major segment is pi r square minus 20.4375. So that is 314 by 100 into 15 into 15. That is minus 20.4375. We'll not cancel it out because 100 से decimal लगा लेंगे. 225 into 314. That is equal to 522. It is 706.50 minus 20.4375. And your answer is, we'll subtract 706.50. 4375 means 00 and 02. 5 972 936 0, that is 686. 686.0625 centimeter square is the area of your major segment. So now let's move to question number 7 of this exercise. Question number 8 के बारे में बात करेंगे. आप कहेंगे कि सर 7 कहाँ गया? As I told you, when the angle is in this question number 7, the angle is 120 degree. So it is not there in your syllabus for 2021 exam. So आप क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं. वैसे वहां पर एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट करना था, तो द फॉर्मूला इज स्टिल द सेम. सो यहाँ पे बात करते हैं. हॉर्स इज टाइड टू अ पैग. पैग मतलब एक खूंटा, जैसे जिससे जानवर बांधे जाते हैं उसको बोलते हैं पैग. एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर. एक स्क्वायर शेप्ड 15 मीटर ग्रास फील्ड है, उसके एक कॉर्नर पर यहां पर एक पैग लगाया गया है, खूंटा लगाया गया है और एक हॉर्स को टाई किया गया है. फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज. अब उसके पास 5 मीटर लंबी रस्सी है, तो वो तकरीबन ऐसे ग्रेज कर सकता है इतने पोर्शन में, यानी ये 5 मीटर हो गया. सो इन एक्चुअल देखा जाए तो ये आपके पास एक क्वाड्रेंट बन गया, बिकॉज एंगल इज 90 डिग्री. क्वाड्रेंट हो गया एक सर्कल का, 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल, एंड रेडियस हैज बिकम 5 मीटर. सो फॉर द फर्स्ट पार्ट रेडियस इज 5 मीटर and theta is 90 degree. Yeah, directly you can write down that it is a quadrant. So area of the part in which horse can graze, that is 1/4 pi r square. You can directly write down 1/4 pi r square. That is 1/4 into, they have mentioned use pi is equal to 3.14. So it is 314 by 100 into 5 into 5. 5 2s are 5 4s are 2, 157 by 8. 157 by 8 meter square. In the second part they are asking the increase in the grazing area. अब आपको क्या करना है, रेडियस आपका 5 से 10 हो गया है, वो एरिया निकालिए, उसमें से ये माइनस करेंगे आप, यानी 1/4 into 314 by 100 into 10 into 10. 100 is cancelled. 157 by 2 minus 157 by 8. This is your
एरिया जो इंक्रीज होगा. So I hope this is clear to you. Now let's move to the next question. Okay, question number 9 says a brooch is made with silver wire. एक ब्रोच बनाया गया है सिल्वर वायर से in the form of a circle with a diameter 35 millimeter. The wire is also used in making 5 diameters. 5 diameters भी बनाए गए हैं which divide the circle in 10 equal sectors. तो ये 10 equal sectors के अंदर ये divide हो गया है as shown in the figure. Find the total length of the silver wire required. कितनी वायर की रिक्वायरमेंट होगी और एरिया ऑफ ईच सेक्टर, हर एक सेक्टर का एरिया कितना होगा. सो सॉल्यूशन करते हैं. योर रेडियस हियर इज 35 बाय 20 सेंटीमीटर, that is 7 by 4 centimeter. Diameter is 35, so the radius is 35 by 20 centimeter. वो मिलीमीटर में था. And length of the wire. अब इसके अंदर वायर किस तरीके से है भाई? 5 तो आपके पास डायामीटर है, तो 5 तो डायामीटर हो गए. डायामीटर आप रेडियस अगर 7 by 4 है तो डबल इसका डायामीटर होता है, दैट इज 7 by 2 सेंटीमीटर प्लस लेंथ ऑफ दिस सर्कमफ्रेंस, और लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस है 2 पाई आर. सो दैट इज कम 35 by 2 प्लस 2 into 22 by 7 into 7 by 4. So 2 2s are 2 11, 7 7 cancel. 17.5 plus 11, that is 28.5 centimeter. This is the length of the wire required. अब बात करते हैं what is the area of each sector. हर सेक्टर का एरिया कितना है. अब बात करें अगर इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो द टोटल एंगल वाज 360 और 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो हर एक एंगल कितने डिग्री का आएगा? 36 डिग्री का. सो रेडियस हियर इज 7 by 4 सेंटीमीटर, थीटा इज 36. सो एरिया ऑफ ईच सेक्टर. अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला भी अपने को याद है, दैट इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. So it is 22 by 7 into 7 by 4 into 7 by 4 into 36 by 360. That is 10. 7 is cancelled with 7. 2, 11. That is 77 by 80 centimeter square. This is the area of each sector. So now let's move to question number 10th. Question number 10 says an umbrella has 8 ribs. 8 डंडियां हैं उसके अंदर, which are equally spaced, बराबर दूरी के ऊपर हैं. Assuming umbrella to be a flat circle, एक flat circle की तरह इसको assume करें, of radius 45 सेंटीमीटर. तो जो भी रेडियस है यहां से that is 45 सेंटीमीटर. Find the area between two consecutive ribs. दो लगातार आने वाली रिब्स के बीच का एरिया. तो अगर मुझे ये एंगल पता हो तो फिर हम ये एक सेक्टर बन जाएगा. अब ये 8 इक्वल रिब्स हैं तो टोटल एंगल इज, कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू 360. एंगल बिटवीन टू रिब्स, एंगल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स कितना आएगा? दैट इज 360 by 8. 45 डिग्री का ये आपके पास एंगल आ गया. ये नाउ एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला में मालूम है. एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. सो दैट इज 22 by 7 into 45 into 45 into 45 by 360. Now
आई एम लिविंग दिस कैलकुलेशन फॉर यू. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट और आंसर अपना चेक कीजिए कि आपकी कैलकुलेशंस कितनी स्ट्रांग है. सो आई हैव डन अप टू 10 क्वेश्चंस. इन 10 क्वेश्चंस में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, डू कमेंट मी. थैंक यू वेरी मच.